लोगों को helping verbs are also called as to be verbs. To be, just like this, written like this, pronounced like this, to be. And we call them as helping verbs also. What is the relevance of using helping verbs in a sentence? Sometimes the main verb alone cannot justify the meaning or the correctness of that particular sentence. So that's why helping verbs are used as a support, or they are used to help the main verb to complete the whole sentence properly. I'll tell you how. So my main verbs, I'm using ing form as example. These are my main verbs, main activities that I am performing. Verbs are what? Some kind of action or activities. So these are my main verbs: playing, dancing, cooking, decorating, sleeping, talking, laughing, crying, bathing. All these are main verbs. Now, if I say the sentence like this, she writing letter, is it correct? Or she writing a letter? Okay. Please tell me if this sentence is correct or not. No, this is not correct. Helping verb is missing, and article is also have placed at the wrong place. So sentence will be she is writing a letter. She is writing a letter. And what about the article, Adiba? Do I need to change the position of article to is the article? No, it She is at write, correct. It is at correct place. okay. Now, is the sentence correct? She is writing a letter. Yeah. Correct? Okay. One more sentence. Correct or incorrect? Incorrect. Why? Because all we के साथ always we will be using are as a helping verb. वी के साथ Yeah. या कुकिंग के साथ? No, we के साथ. वी के साथ आर लगा देंगे. Yeah. ठीक है. अगर मैं कुकिंग हटा दूं, वी आर टुगेदर, सही है? Huh? सही है ना? कहाँ Yes. गलत है? वी आर टुगेदर, हम साथ में हैं, हम Correct. साथ में रहते हैं, हम साथ साथ हैं. Any which ways you can say this sentence. Yes. We are together, we are cooking together. So this sentence will become, oh, sorry. I'll write it again. No? We are cooking together. Helping verb is required to complete my sentence and to give it correctness. Otherwise, without helping verb, either it will be incomplete or it will be incorrect. Though I am writing or I am speaking doesn't make a difference. I need to be correct with my helping verbs always. Now, people generally face problem when they are using uh, helping verbs in past tense. How people say, she was decorated the room. I was celebrated my last birthday. What is the error if anybody can spot it? आप रिपीट करेंगे एक बार? हाँ, मैं लिख देती हूँ. गलत है पर लिख देती हूँ, फिर मैं कट कर दूंगी उसे. She was celebrated her birthday. I was decorated my room. पास्ट टेंस में कहना है, लेकिन कुछ इस तरीके से बना दिया. सही गलत? एनी ओपिनियन? Had आएगा ना, was की जगह. She had celebrated her birthday. ओके. अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वो अपना जन्मदिन मना रही थी. ing लग जाएगा. She was Correct. celebrating her birthday. Correct. So she was celebrating her birthday. Or else this can was, I think with was we cannot use third form of a verb.
So that is one of the reason it is wrong. So I was decorate. I did decorated. I did decoration. नहीं बन रहा है sentence, अगर ed हटा दे तो. I was decorating. Yeah. करेक्ट है। हाँ. अगर मुझे डेकोरेटेड का ही इस्तेमाल करना है तो मैं कुछ ऐसा लिख सकती हूँ, आई डेकोरेटेड माई रूम, शी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे। हैड हैव की भी जरूरत नहीं, पास्ट टेंस सही बन गया, वो सही है बेचारा। शी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे, आई डेकोरेटेड माई रूम, खत्म। इतनी सी होती है इंग्लिश। हम पता नहीं कई बार उसमें कुड, हैव, हैज, बहुत कुछ लगा के ना सेंटेंसेस को लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। जरूरत ही नहीं है, ये भी तो सही है, कहाँ गलत है? डिपेंड करता है ना मेरा टेंस कौन सा है। अगर मेरा सिंपल पास्ट टेंस है, सो शी सेलिब्रेटेड, आई डेकोरेटेड, करेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, सो शी वाज डेकोरेटिंग, आई वाज सेलिब्रेटिंग, फिर वो ठीक है। वो डिपेंड करता है मेरा टेंस क्या है। ठीक है, तो एक छोटा सा मतलब याद रखने के लिए बताती हूँ। हेल्पिंग वर्ब्स के साथ जनरली वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही आता है मैक्सिमम टाइम्स। कुछ कुछ एक्सेप्शंस आएंगे जहां पे आईएनजी नहीं आएगा, कोई और फॉर्म आ जाएगा। वो डिपेंड करता है कि वो वर्ब किस फॉर्म में यूज हो रहा है, क्या क्यों यूज हो रहा है वो इस तरीके से। बट फॉर नाउ आप याद रखो एक बार हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से, एक चार्ट में दिखा देती हूँ आपको। पहले ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं। वॉज वर्ब का जिक्र नहीं है, पर आप चाहो तो इसी टेबल में अपने, जब आप अपने नोट्स बनाओ उसमें ऐड कर लेना। ये अब इज, ये जो वर्ब्स है इज, आर, एम, यहाँ पे ये दिए, वॉज वर्ब भी आप डाल लेना। और ये इनके सब्जेक्ट है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगता है। आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर लगता है, वी के साथ आर लगता है। पता है बच्चों वाली चीज है, फिर भी चाहो तो एक बार ये शीट फ्लिप कर लेना, अगर कोई कंफ्यूजन होगा भी तो वो चला जाएगा। और वॉज वर्ब भी ऐड कर लेना पास्ट के लिए। तो इतना याद रखेंगे सब लोग, whenever we are using helping verb and there is a verb next to it, there is a possibility most of the time it will be in ing form only. 95% it will be in ing form. 5% exception always is kept for theories and different rules that we have. So if I am writing I am, if I'm writing on a sheet of paper, I am a girl, either I can write I am or I can use this apostrophe form too, I apostrophe am. But this is used only for writing. In emails also, you can write it. If you're writing a letter to a client, you can write it too. It is allowed. But while speaking, the sound will be slightly different. Like I am sleeping, I'm sleeping, I'm, your, you are sleeping, you're sleeping, your. There is a slight difference, but I will not recommend you to go into that technicality of complicating the things, not required. Simply say you are sleeping, he is a boy, as per your flow. If you are comfortable, he's a boy, she's a girl, it's easy. If you're able to say that in one flow, it's okay. Otherwise, say the whole sentence. Rather, when we say the whole word, it becomes more professional. It is a beautiful picture. It's a beautiful sunny day. Correct. But how do we speak? What is our accent? That makes the difference. So if you have problem using these apostrophe, say the full sentence. It is a bright sunny day. Correct. Got it? इसमें बहुत लोग दिक्कत करते हैं। अपॉस्ट्रोफी है जैसे वी हैड का वीड कर देंगे, या आरंट बोलते हैं, डिडंट बोलते हैं, वो पूरी तरह से गलत ही हो जाता है। आरंट रॉन्ग है, इट्स आंट। वी आंट एंजॉयिंग द पार्टी एट ऑल, ARE apostrophe NT, आंट। वो आंट जैसा ही सुनाई देता है, वो सही है, पर लोग उसको आरंट बोलते हैं। फिर आर उसमें साइलेंट होता है ना, साइलेंट होता है, सॉफ्ट होता है। आर हर जगह सॉफ्ट होता है। वो हम पता नहीं हैमर मारते हैं, उसको रोल कर देते हैं, टम्बलर, डोर, वो आर साउंड आता है। इट इज क्रीपी, ट्रूली क्रीपी। यहां तक कोई डाउट?
इसको कैसे बोलेंगे they are को? They are. Yeah. Okay. So it is a very simple picture. I will describe it. She is Julia. She is 39 years old. She is an American from Boston. She is a successful doctor. Her best friend's name is Christy. She is married with 2 children. अब यहाँ पे अगर कोई नोट करे she is married, यहाँ मैंने marrying जैसा कोई वर्ड नहीं लगाया. She is marrying with 2 children नहीं. She is married with 2 children. Married क्या है? Main verb नहीं है. It is just some kind of event, some happening that we are discussing. Marriage, married. इसीलिए यहाँ marrying ing की कोई जरूरत पड़ी ही नहीं. इसी तरीके का एक्सेप्शन था जिसकी मैं बात कर रही थी. ये वो 5% एक्सेप्शन लिस्ट में आप डाल सकते हो. क्लियर है ना? सिंपल. अभी तक सब सिंपल चल रहा है. Okay. Adiba, if you can make some sentences for Sarah using the clues. Sarah is 6 years old. She is studying in grade 1. Also, she is from Australian Chinese mother. She is an Australian and her mother is from China. And apart from that, she is writing using her right hand. She's writing using her right hand. That's correct. Okay. Simple sentences. Yes, we will, once we'll have that interaction, then we will get some difficult sentences. For now, it is okay to be easy. Surbhi, I hope you are here. Yes, I'm here. Sure. Surbhi, just do me a favor. So she is a nice woman. Try to put any helping verb of your choice with is in all the sentences. Okay. It can be illogical. I'm okay with it. She is a nice woman. He's a tall man. The movie is funny. The weather is cold. It is like simple only. It is beautiful today. No, it is. Yeah, it is beautiful today. They are funny. अच्छा, now मैं repeat करती हूँ. Sorry. इसके साथ में एक verb लगाओ जिसमें ing आए अपनी मर्जी का. Okay, ऐसे करना है. She is dancing with a nice woman. He is running with a tall man. कुछ ऐसे बना दो. Okay, she is smiling. Okay, she's smiling right now, and he is talking with a tall man. Okay. The movie is interesting. The movie is interesting in the last. Okay. The weather is running cold. Okay, running cold. Okay. मतलब रात होती है तो सर्दी बढ़ रही है ऐसा कुछ. Okay, and it is beautiful today. It is looking beautiful today. Yeah, वही बोलने वाली. It is looking beautiful today, and they are speaking very loudly. Very good. Or they are talking very loudly. हाँ, ठीक है. हमने अपनी इमेजिनेशन से सेंटेंसेस को चेंज कर दिया because we wanted to know about the ing form. is आ रहा है. ठीक है. Ekta, your turn. Using the clues, is are am, anything you can put and use verb with ing.
The small car is running fast. Very good. And the boots are looking very dirty. Very good. The big house is decorated very beautifully. Okay, the big house is decorated beautifully. Beautifully. Okay, it is absolutely correct. So, of course, we know where are we using is, are, am. It is just that we talked about some helping verbs. Now we can try to fill it in the given option, in these given sentences. Adiba, please fill up a suitable helping verb. Helping verb. They are a nice family. Okay. The movie is sold out. Hmm. The test is difficult. You should study. Hmm. He is a nice man. He is kind and friendly. Hmm. They are a big family. She has 5 brothers and sisters. Correct. Absolutely okay. It's similar. So they are just using apostrophe in this sentence. Okay, let me just check if there is something new in the left out in the sheet. I'll just cover that. Surbhi, please complete these sentences. The show is funny. It always makes me laugh. Hmm. I do not enjoy the class. It is very slow and boring. Correct. I hope that is not applicable for my class. We are enjoying. Yep. Okay, Ekta. Cold outside. It is raining today. I'm waiting for the train. It is late today. It is late today. Absolutely okay. ठीक है. Now these are simple. am not लगाना तो आता है. Concept same रहेगा. जैसे she is not looking beautiful today. बस जो ing है वो वही रहेगा, is are am है वो वही रहेगा, बीच में एक नॉट लगा दिया और कोई डिफरेंस नहीं है. तो प्लीज ऐसा मत कहना कभी सेंटेंस शी इज नॉट लुक नाइस टुडे. शी इज नॉट लुकिंग नाइस टुडे. इज नॉट आप सोचना एक ही एंटिटी है और उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है वहां पे हमने आईएनजी लगा दिया. तो मैंने जो लेफ्ट साइड में एग्जांपल्स दिए, शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वी आर नॉट कुकिंग टुगेदर, she was not celebrating her birthday, I was not decorating my room. बस मैंने नॉट फिट कर दिया, बाकी मेरा लॉजिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही का वही है. नो डिफरेंस इन दैट. आई होप इट इज क्लियर. कोई सेंटेंस लिखना है, कुछ एग्जांपल आप लिख लीजिए, फिर हम आगे दूसरी शीट पे चलते हैं. इसकी एक और शीट है अभी. शॉर्ट में अगर कुछ नोट लिखना है डू. हो जाए तो बता देना, आई चेंज. ठीक है, सबको आ गया ना? ठीक. हाँ, इज नॉट को आप अपोस्ट्रोफी फॉर्म में भी लिख सकते हो, हम जो पिछले डिस्कस कर रहे थे, आंट, इजंट. सो इसको इजंट ही कहते हैं, बट ये फ्लो में अच्छा नहीं लगता. आई विल रिकमेंड यू स्पीक इट प्रॉपर्ली. शी इज नॉट लुकिंग गुड. शी इजंट लुकिंग गुड. करेक्ट, कोई डिफिकल्टी नहीं है. पर एक होता है ना, एक लैंग्वेज की अपनी ब्यूटी होती है जो कुछ फॉर्म ऑफ वर्ड से ही आती है. अब जैसे डिडंट अच्छा नहीं लगता तो वो नहीं लगता. शी डिडंट पार्टिसिपेट, she didn't participate या she did not participate. आप प्रोफेशनली, आप तीनों प्रोफेशनल्स हो, अच्छे अच्छे क्लाइंट्स, कस्टमर्स, ऐसे लोगों के साथ डील करते हो. So there has to be a grace in your language too.
So we are not only focusing on our rules, on our grammar, we are also focusing on our accent, tone, and the beauty of that. Clear है? कोई दिक्कत तो नहीं? इसमें किसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत? She's not, he's not, it's not. अच्छा, आपने नोट किया होगा कुछ लोग जैसे हम बोलते हैं थैंक यू, सो दे से योर वेलकम। योर वेलकम, वो ये वाला योर बोलते हैं, वो वायो यू आर वाला योर नहीं होता है, वो ये वाला योर होता है। योर अपोस्ट्रोफी आर ई, योर वेलकम मतलब यू आर वेलकम को वो योर वेलकम ऐसे बुलाते हैं। तो कभी आप लिखें कहीं, सो वाई ओ यू आर स्पेलिंग मत लिखना, यू आर वेलकम या ऐसे अपोस्ट्रोफी में। So certain helping verbs is are, am, was, were. So this is a sheet if you want to have a look later for your reference. So everywhere we are using helping verb, in the question also, in the statement also. Like, I am a girl. Am I not looking good today? I am looking good today. I am not looking good today. Are you from India? Are you living in India? Is this the sheet that you were talking about? Are you not feeling well? Aren't you feeling well today? Okay. I am feeling well today. I am not feeling well today. Are they occupied by work? Were they calling me? They were not calling me. I did not hear anything. मैंने क्या किया, कुछ सेंटेंसेस को मिक्स करके बता दिया, सीक्वेंस नहीं फॉलो किया, मिक्स करके बताया। क्वेश्चन और स्टेटमेंट दोनों में एक चीज कॉमन थी, क्या? सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। हाँ, वो तो आएगा, डिफरेंट था। एक चीज तो सब में आई ही आई, उसके बिना सेंटेंस मैंने दिया ही नहीं। वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब आपके स्टेटमेंट में या आपके क्वेश्चन के बिगिनिंग में कहीं भी आ सकता है, बस उसके साथ जो सब्जेक्ट है वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे अगर आई के साथ एम लगता है तो क्वेश्चन फॉर्म में भी आई के साथ एम ही लगेगा। एम आई नॉट लुकिंग गुड टुडे? आई एम लुकिंग गुड टुडे। आई एम नॉट लुकिंग गुड टुडे। आरंट यू द सेम गाय I met yesterday? He replies, yes, I am the same guy you met yesterday. तो कहने का मतलब जिस भी सब्जेक्ट के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब लगता है सेंटेंस में वही लगता है क्वेश्चन में, सिर्फ सीक्वेंस चेंज हो जाता है। जैसे आर, अगर मैं आर लगा रही हूं, वी आर सेलिब्रेटिंग टुगेदर, तो वो आर अंदर आ रहा है सेंटेंस में, और अगर क्वेश्चन में है आर वी सेलिब्रेटिंग टुगेदर तो वो पहले आ जाएगा, पर इससे सब्जेक्ट नहीं बदलता। ये कंफ्यूजन किसी को इसी ग्रुप में था क्या कि अगर मैं सीक्वेंस चेंज कर रही हूँ क्वेश्चन की तो सब्जेक्ट भी वो चेंज हो जाएगा? किसने पूछा था मुझसे? कौन बोला था? पता नहीं, कोई ट्रेनी इस बैच में नहीं बोला होगा, फिर कहीं और किसी बैच में बोला होगा। तो उन्होंने ये बोला कि जैसे आपने क्वेश्चन बनाया ना, जैसे आई एम अ गर्ल, ये स्टेटमेंट है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, कोई बताएगा? गर्ल। आई, जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है। शी इज अ गर्ल, रीटा इज अ गर्ल, राम इज अ बॉय। रीटा, राम, शी ये सब्जेक्ट है क्योंकि इनके बारे में बात करी जा रही है, और जो गर्ल और बॉय है वो नाउन है, तो वो हो जाएगा अग्रीमेंट या ऑब्जेक्ट या कोई नाउन, कुछ भी, कि उनकी किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उनके जेंडर के बारे में या लुक्स के बारे में। एडजेक्टिव्स की बात करें, राम इज एन ऑनेस्ट मैन, तो उसकी ऑनेस्टी पे बात करें, उसके एडजेक्टिव है ऑनेस्टी।
इट कैन बी एनीथिंग, और सीक्वेंस बदलने से सब्जेक्ट चेंज नहीं होता। जैसे राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, इज राम एन ऑनेस्ट बॉय, सब्जेक्ट यहाँ भी राम ही रहेगा, बॉय नाउन रहेगा और इज हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा। तो सीक्वेंस बदल देने से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चेंज नहीं होता, इसका प्लीज ध्यान रखना अगर कंफ्यूजन है तो। समझ में आया क्या मैंने जो बताया? ठीक है। So these are the questions. I also spoke some of them. Are you tired again? Are tired you again? Of course, ये हमें पता चल रहा है ये सेंटेंस गलत है। Is he happy with his new teacher? Is happy he with his new teacher? We know that. कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ में आएगा? तो हेल्पिंग वर्ब और उसका सब्जेक्ट क्वेश्चन जब बनाएंगे वो दोनों साथ ही आएंगे। अब जैसे आर यू टायर्ड, आर हेल्पिंग वर्ब, यू उसका सब्जेक्ट है, ये दोनों भाई हैं जुड़वा, इनको अलग नहीं करना है क्वेश्चन बनाते टाइम, ध्यान रखना, क्योंकि सेंटेंस तो बन जाता है, जब उसी का क्वेश्चन बनाते हैं ना वहां दिक्कत आती है। तो इसका ध्यान रखना सब लोग। रिपीट कर देती हूँ, हेल्पिंग वर्ब विल कम विथ इट्स सब्जेक्ट व्हाइल वी आर फ्रेमिंग अ क्वेश्चन। मुझे पता है थोड़ी सी थ्योरेटिकल हो जाती हैं चीजें, पर पता होनी चाहिए हमें। हेल्पिंग वर्ब विद द सब्जेक्ट, आगे क्या बोला था आपने? हाँ, जैसे आर यू टायर्ड अगेन है, तो यू मतलब आई एम आस्किंग यू, यू आर द सब्जेक्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट यू। So me, Adiba and Surbhi were talking about Ekta. Ekta is not looking fine today. Ekta is the subject. So when you came, we asked you, Ekta, are you not fine today? Are you not fine today? You as in you are the subject. And are is the helping verb that we are putting with the subject. जब सब ठीक होगा तभी मिलेंगे। So these are some of the sentences. Are they? Is he? Is he? Clear हो गया ना? Helping verb coming with the subject. अब यहाँ पे is that woman angry? That woman, ये पूरा subject है हमारा. I'm referring to particular lady. Is she your daughter? Okay. Is she your mother? She मतलब she. Mother तो या daughter तो relation बता रहे हैं कि कौन है, पर जिसके बारे में बात करी जा रही है वो है she, तो वो सब्जेक्ट है। वैसे हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक डिटेल सेशन लेंगे बिकॉज उसमें सिर्फ इतना सा नहीं है, उसमें बहुत लंबी कहानी चलती है, डज डू सबका यूज आता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, जहां हम बहुत गलतियां कर देते हैं। जैसे हम बोलते हैं शी डज नॉट नोज अबाउट हर सिटी, कोई बताएगा सही है या गलत है? शी डज नॉट नोज अबाउट हर सिटी। No, it is wrong. Knows नहीं आएगा, no आएगा. Either she does not know about her city or either she does not aware about her city. She does not aware, ये गलत हो गया सेंटेंस। She is Aware not हो गया. aware. She is not aware about her city. क्यों ऐसे? क्योंकि ये जो डू और डज है ना, इनका भी एक अपना रेलेवेंस है सेंटेंस में आने का। वो अपने शहर के बारे में नहीं जानती, और इज हमारा क्या लग रहा है कितनी देर से? हेल्पिंग वर्ब चल रहा है। Helping verb. तो अब शी इज नॉट अवेयर ऑफ हर सिटी, उसे अपने शहर के बारे में जागरूकता नहीं है, तो इसीलिए मैंने इज लगाया, क्योंकि दोनों वर्ड्स को लगाने से मेरे सेंटेंस का जो मतलब है वो चेंज हो गया, फॉर्मेशन चेंज हो गया। पहला था शी डज नॉट नो, वो जानती ही नहीं है अपने सिटी के बारे में, और दूसरा आया शी इज नॉट अवेयर ऑफ हर सिटी, उसे मालूम ही नहीं है सिटी के बारे, जागरूकता ही नहीं है कोई।
करेंगे, इसीलिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हम करेंगे, जहां हम ये डू, डज, हैज, हैव, इज, आर, एम कहाँ किसके साथ कैसे सही लगना चाहिए। इज, आर, एम का तो बहुत कम रोल है, बट मेजरली डू, डज, हैज, एंड इज एम आर का तो मतलब आइडिया भी है, बट हाँ डू डज में कभी कंफ्यूजन आ जाती है। करेक्ट। अच्छा, एक ये प्रेपोजिशन में से सवाल बाय चांस ये सेंटेंस आ गया, बताना मुझे ये सही है। हु इज एट द डोर? शीट कैन बी रॉन्ग, इट इज कंप्यूटर मेड। She is at, who is at the door? Yeah, I think it is correct. Okay. Yeah, I think it is correct. On the door नहीं होगा, she is, who is on the door? On नहीं, नहीं आएगा। वो तो हिंदी में हो जाएगा ना कि दरवाजे पे कौन है देख लो, जैसे हम बोलते कभी कभी। हाँ, तो at भी वही है, दरवाजे पर कौन है। अच्छा, On होगा तो दरवाजे के ऊपर कौन है, दरवाजे के हाँ ऊपर राइट। वाला। On the table, on the door, दरवाजे के ऊपर कोई खड़ा है नहीं, दरवाजे पर खड़ा है, कहीं कहीं उसके आसपास खड़ा है, तो who is at the door, not who is on the door। बहुत लोग on the door बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया शायद। इज, आर, एम मैं ज्यादा नहीं करा रही, ये थोड़ा सा किडिश हो रहा है। ओके, इसका यूज जरूर बता देती हूँ मैं। हु, विच, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ लगाते टाइम कई बार गड़बड़ होती है। देखो, हु लगेगा किसी लिविंग बीइंग के लिए, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, बर्ड्स। हु इज दैट बर्ड? हु इज दैट डॉग? हु इज द बॉय? तो हु लगेगा, जैसे बोलते हैं ना कौन है वो डॉग कौन है, ब्लैक वाला डॉग किसका है, कौन है, वो लड़का कौन खड़ा है। तो जो कौन आएगा फॉर पीपल, लिविंग बींग्स, दैट विल बी यूज्ड, देयर विल बी यूजिंग हु। नेक्स्ट इज व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या, वो क्या है, व्हाट इज द टाइम, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, दैट इज व्हाट। व्हेन का मतलब होगा कब, तो व्हेन हमेशा टाइमिंग से एसोसिएटेड होगा। व्हेन आर यू प्लानिंग फॉर द इवेंट, व्हेन इज द मीटिंग। तो जो भी हम टाइम ड्यूरेशन या कब को डिनोट करें, वहां पे हम लगाएंगे व्हेन। देन वेयर, कहाँ पे, कहाँ मतलब कोई जगह, कोई लोकेशन, कोई बिल्डिंग। सो वेयर इज योर होम सिचुएटेड, वेयर इज इंडिया गेट सिचुएटेड, कहाँ पर है। वाई, क्यों, रीजन, वजह। Why is he behaving like a child? Why is he not a mature person? वो ऐसा क्यों नहीं है। और how मतलब कैसा, how are you, how have you been, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या सॉरी क्या करने में, कैसे हो, कैसी तबीयत है, how is your health now। Simple, but yes, we should know the meaning of each and everything। एक होता है which, देखो इसके आगे है तो नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। which किसका या कौन सा कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, अगर हिंदी से आप समझे तो। विच इज माई चेयर, विच इज माई बैग आउट ऑफ दीज, इनमें से कौन सा मेरा वाला बैग है, मुझे दे दो, मेरी सीट कौन सी है। सो देयर वी आर यूजिंग विच। बस हो गए। हाँ ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, मिलते हैं हम परसों। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय, या गुड नाइट। गुड नाइट।